Good morning, everyone. Myself, Dr. Karan Sukheja, Assistant Professor, School of Science and Emerging Technology at Jagat Guru Nanak Dev Punjab State Open University, Patiala. So, the today topic is problem solving using computer. What is problem solving? The computer-based problem solving is a systematic process of designing, implementing, and using programming tools during the problem solving stage. Because whenever we have used any of the programming language, if we are working on any project or any problem, then we have to need some kind of programming tools or programming language to solve a problem. Because in an algorithmic approach, flowchart approach, or any approach we can follow to solve the problem. But to solve the problem is a systematic process that comprises of the following 6 steps. That is problem analysis, program design, coding, compilation and execution, debugging and testing, and program documentation. So basically किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम यूज करते हैं या किसी भी प्रोग्रामिंग टूल को यूज करते हैं तो हमें इन 6 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन के लिए। तो सबसे पहले स्टेज आ जाती है प्रॉब्लम एनालिसिस। व्हाट इज प्रॉब्लम एनालिसिस? उससे भी पहले दिस इज अ फ्लो चार्ट। द फ्लो चार्ट इज all the steps are interlinked with each other. The problem is start with the problem analysis, follow with the problem design, further follow with the coding, and after the coding there is a compilation and execution step. When we have completed the compilation and execution, the next step is testing and debugging, because to find out the bugs, after that the last step is program documentation, to document the each and everything, the conclusion part. So let's start with the first phase, that is problem analysis. What is problem analysis? Problem analysis क्या है? Problem analysis is a process of defining the problem and decomposing overall system into a smaller parts to identify possible inputs, processes and associated outputs with the problem. Because अगर एक simple layman में देखे जाए तो हमारी जितनी भी एक प्रॉब्लम, जिस प्रॉब्लम के ऊपर हम काम कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को डीकम्पोज करके एक स्मॉलर स्टेप्स में किया जाए और हर एक प्रॉब्लम को इंडिविजुअल को जितने भी लाइक एक प्रॉब्लम को हम 4 पार्ट्स में मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं, तो हर किसी मॉड्यूल को इंडिविजुअल आइडेंटिफाई करना है इन द टर्म्स ऑफ इनपुट्स, प्रोसेसेस एंड आउटपुट. In the inputs, what are the inputs and the outputs associated with each other has a following with the what are the processes associated with the both of these steps. Like अगर किसी इनपुट के साथ कौन सी आउटपुट डिफेक्ट हो रही है या कौन सी आउटपुट किस इनपुट के ऊपर डिपेंडेंट है और उन चीजों में कौन सा प्रोसेस इंक्लूड है, that is the association between the whole process. That is the major criteria to analyze the problem, because without analyzing the any processes or input or output, we can't identify the exact problem. So this task is further divided into a subtask. That is the name of that. First one is specifying the objective. किसी भी प्रॉब्लम जो जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, सबसे पहले हमें उसके ऑब्जेक्टिव को स्पेसिफाई करना है भी इसकी इस चीज के ऊपर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, उसी ऑब्जेक्टिव के कॉरस्पॉन्डिंग हमें कौन सी आउटपुट एक्सपेक्टेड है और उस आउटपुट को हमें स्पेसिफाई करना, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें इनपुट्स की रिक्वायरमेंट को स्पेसिफाई करना, आइडेंटिफाई करना और उसी की चीज के ऊपर हमें उस इनपुट्स और आउटपुट के कॉरस्पॉन्डिंग कौन कौन से प्रोसेसेस की रिक्वायरमेंट है उनको स्पेसिफाई करना. फाइनली आफ्टर द identifying the input, output and the corresponding processes, we have to identify the evaluating feasibility of all 3 stages, because to identify or evaluating the feasibility is a major criteria to make the mapping between the inputs and the output processes. And after identifying all the stages, then we have to come up with the final problem analysis documentation. Because जब हम किसी भी चीज के इनपुट्स को, आउटपुट्स को और कॉरस्पॉन्डिंग उसके प्रोसेसेस को, सारी चीजों को, फ्लो को, एक चीज को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसको एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में हम एक डॉक्यूमेंटेशन स्टेज में लाके उस एनालिसिस को ड्रॉ करके हमें अपने फाइनल प्रॉब्लम एनालिसिस को आइडेंटिफाई करना है. द नेक्स्ट स्टेप इज प्रोग्राम डिजाइन. जब भी व्हेन वी हैव आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एनालिसिस, द नेक्स्ट स्टेप इज प्रॉब्लम डिजाइन. जब भी किसी भी प्रोग्राम को हमें एनालिसिस हो जाता है तो हमें उस प्रॉब्लम एनालिसिस के बेस के ऊपर उस प्रॉब्लम का डिजाइन रेडी करना है. और डिजाइनिंग करने के लिए हमें किसी न किसी एक अप्रोच को, एक टूल को फॉलो करना पड़ेगा. लाइक इन द
that can be designed in the form of algorithm, in the form of flowchart, in the form of pseudocode, in the form of any other tool. It depends upon the type of the problem or depend upon the methodology what we have to follow. Because अगर हम किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर किसी लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी के ऊपर काम कर रहे हैं तो उस प्रॉब्लम की टाइप के ऊपर ही डिपेंडेंट करता है कि हम किस तरीके की उस चीज को फॉलो करते हैं। कुछ स्टेप्स के ऊपर हमें फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंट स्टेप्स को भी फॉलो करना पड़ सकता है। लाइक हम एक स्टेज को एल्गोरिथम अप्रोच से फॉलो करेंगे, फिर एल्गोरिथम्स के बेस के ऊपर हम फ्लो चार्ट डिजाइन करेंगे और उसके बेस के ऊपर सूडो कोड लिखेंगे। बिकॉज इफ वी हैव टू डिजाइन द सूडो कोड ऑफ द एनी प्रोग्राम देन it can be translated to a code of language in any code of language very easily, because pseudocode is a basic module to write the coding part of in any programming language. बिकॉज अगर हम किसी चीज़ की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसका एल्गोरिथम प्रोग्राम डिजाइन कर लेते हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसको एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के लिए उसका फ्लो चार्ट रेडी कर लेते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम स्यूडो कोड भी उसका लिख लेते हैं, तो हम उस चीज़ का कोडिंग पार्ट के ऊपर हमें पूरी क्लैरिटी हो जाती है। तो किसी भी लैंग्वेज के अंदर हम उसका कोडिंग पार्ट को लिख सकते हैं। तो जनरली दिस स्टेज इज इंटेंडेड टू मेक प्रोग्राम मोर यूजर फ्रेंडली, फिजिबल एंड ऑप्टिमाइज्ड। सो दिस इज द प्रोग्राम डिजाइन। द नेक्स्ट वन इज कोडिंग पार्ट। जब हमें किसी चीज का एनालिसिस करने के बाद उसका प्रोग्राम का डिजाइन करने के बाद हमें उसका सूडो कोड रेडी हो चुका है, तो फाइनली वी विल वर्क ऑन द कोडिंग पार्ट। लाइक अगर हम किसी प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं तो हम कोडिंग पार्ट उस प्रोसीजर में लिखेंगे। अगर हम ऊप्स में काम कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में लिखेंगे। तो डिफरेंट कोडिंग पार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डोमेन ऑफ लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसके कोडिंग पार्ट पे काम करेंगे। सो व्हाट इज कोडिंग एक्चुअली? द कोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग एक्चुअल प्रोग्राम take place. A code program is most popularly referred to as a source code because that is the source code in which we have writing our code. The coding process can be done in any language, high level language, low language, and the actual use of computer take place in the stage in which the programmer writes a sequence of instruction ready for execution. Coding is known as a programming because the coding is writing in any language or program is called program. And program can be written in any language. It can be a low level language or a high level language. It can be any type like procedure, OOPS or any other language according to the scenario or according to the domain of the problem or whatever the environment in which we are using the coding. So this is the part of coding. The next one is the compilation and execution section, because after writing a code, like if we are writing a code in a procedural language or OOPS like C, C++ in any language, जब हमने किसी भी चीज का कोड राइट कर लिया है तो कोडिंग के बाद, कोडिंग पार्ट कंप्लीट होने के बाद दैट विल बी कन्वर्टेड टू अ प्रोग्राम्स। और प्रोग्राम्स की नेक्स्ट स्टेप है हम उन प्रोग्राम को कंपाइल करना। कंपाइल लैंग्वेज मीन इफ वी आर राइटिंग द कोड इन हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, दैट विल बी इज अ language in which the code has been written, but the code is have to run on the machine, क्योंकि कोड को हमने एक जिस लैंग्वेज में लिखा है मशीन की लैंग्वेज से वो डिफरेंट है, बिकॉज मशीन हैव अ डिफरेंट असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। तो बेसिकली जिस लैंग्वेज में कोड लिखा गया है उसकी ट्रांसफॉर्म और उसकी कंपाइलेशन के बाद उसकी कन्वर्जन होगी मशीन लैंग्वेज में, दैट इज द कंपाइलेशन पार्ट। तो इस कंपाइलेशन पार्ट को भी डिफरेंट स्टेजेस में कहा गया है। कुछ लैंग्वेजेस में कंपाइलेशन पार्ट को कंपाइलर कोई पॉइंट ऑफ व्यू से रन किया जाता है और कुछ में कंपाइलर और इंटरप्रेटर दो स्टेप्स में उसको फॉलो किया जाता है। तो कंपाइलेशन इज अ प्रोसेस टू कन्वर्ट द कोडिंग पार्ट इज डन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू अ मशीन लैंग्वेज। इन अ सिंपल स्टेप वी कैन से दैट फॉर द कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज दे मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू अ मशीन लैंग्वेज। द ट्रांसलेशन प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय कंपाइलर और इंटरप्रेटर फॉर अ हाई लैंग्वेज और एन असेंबलर फॉर द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। सो बेसिकली कंपाइलेशन जिस लैंग्वेज में हमें कोड लिखा होता है, तो कंपाइलेशन में वो हमारा जो लिखा हुआ प्रोग्राम और कोड है वो कंप्यूटर की मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है, जिस लैंग्वेज में कंप्यूटर उसको रन करता है, दैट इज द एग्जीक्यूशन स्टेज। बिकॉज अगर हम कंप्यूटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मशीन लैंग्वेज की बात करते हैं, द मशीन लैंग्वेज इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1। सो हाई लेवल लैंग्वेज में अगर हमने किसी कोड को राइट किया है तो कंपाइलेशन में वो कोड एक मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा ताकि हमारा सिस्टम उसको रन कर सके, एग्जीक्यूट कर सके। एंड आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट थिंग द आउटपुट विल गेट आल्सो इन द हाई लेवल फॉर्म, बिकॉज
If we are writing the code in the high level form, we will get the result also in the high level language form. So this is the process of compilation and execution. After that is the debugging and testing part. What is the debugging and testing? Because without testing of anything, the bugs cannot be removed, or there be a chances of errors and inconsistency. So testing is the most important part to run the program in the error-free form. So what is debugging actually? Debugging is a process of finding errors and removing them from computers. Otherwise, they will lead to a failure of program. Debugging is generally done by program developer. Testing is performed to verify that whether the completed software package functions or work according to the expectations defined by the requirement. Testing is generally performed by testing team, which actually repeatedly execute program intent to find the errors. Because testing is the most important part. Why? बिकॉज हम जब टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं तो टेस्टिंग का पार्ट, टेस्टिंग और डिबगिंग टर्म्स को हम अलग टर्म्स में एक्सप्लेन करते हैं। टेस्टिंग के पार्ट में जैसे भी हमने जिस इंटेंशंस के साथ, जिस ऑब्जेक्टिव के साथ प्रोग्राम को डिफाइन किया था, क्या उसी ऑब्जेक्टिव को हम अचीव कर पा रहे हैं, हमें वैसे ही रिजल्ट मिल रहे हैं जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने उस प्रोग्राम को डिजाइन किया था या उसका कोडिंग पार्ट लिखा था, जिस चीज की हमें एक्सपेक्टेशन थी वही हमें आउटपुट मिल रही है, दैट इज द टेस्टिंग पार्ट। तो अगर हम अपनी इनपुट्स और एक्सपेक्टेड आउटपुट को मीट कर रहे हैं तो दैट इज द टेस्टिंग। और हमारा उस चीज के टेस्टिंग के बेस में हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है कि हम डिफरेंट काइंड के रेपिटेटिवली एग्जीक्यूशन करें प्रोग्राम की डिफरेंट इनपुट्स के कॉरस्पॉन्डिंग, ताकि हमारा एक ऑब्जेक्टिव होगा टू फाइंड आउट द एरर्स इन अ डिफरेंट मैनर। किसी इनपुट्स के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट सही आ रही है बट किसी अलग इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग एरर सही नहीं आ रही, तो हम उस चीज के लिए भी उसको प्रिपेयर करना है। लाइक आई कैन गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल। अगर हम एक लॉजिकल एरर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, एक डिवाइडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इफ वी हैव डिवाइड द एनी नंबर्स बाय 0, तो डिनोमिनेटर्स में अगर हम 0 दे रहे हैं तो उस केस में हमने उसकी एक्सेप्शंस हैंडलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ टेस्टिंग मेजर्स लगाए हैं। भी इनपुट्स रॉन्ग भी इनपुट नहीं होनी चाहिए, और अगर वैलिड इनपुट है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें वैलिड रिजल्ट्स और करेक्ट आउटपुट मिल रही है कि नहीं मिल रही। तो डिफरेंट परमुटेशंस और कॉम्बिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्टिंग को परफॉर्म किया जाता है, और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमें डीबगिंग्स भी करनी पड़ती है, फिर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, सिंटैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट इज व्हाट इज द मेन टर्म ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज द सिंटैक्स, टू राइट द प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू द defined constraints of that language, according to the keywords, according to the syntax. The way of writing the instructions in that language is a major part. So to follow the syntax of that language, including of syntax, including of semantic, including of logical, including of runtime compilism, each and everything must be keep in mind to debug the program. So that is the most important part of any computer problem solving, that is debugging and testing. And the last one stage is the program documentation section. If we have followed all the stages like program, problem identification, program designing, coding part, debugging and testing part, and all the steps has been followed, the final part is the documentation part, because the document is the process of collecting information about the program and is set down with the problem analysis phase to a debugging and testing. बिकॉज हम जब भी किसी चीज़ को, हम जिस प्रॉब्लम के ऊपर भी काम कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे जितने भी स्टेप्स को हमें फॉलो किया गया है, हर एक चीज़ को एक डॉक्यूमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक डॉक्यूमेंट के वे में, एक राइटिंग वे में एक लेके आना, ताकि वो उस प्रॉब्लम का एक डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए, जिसको हम एक पोर्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या एडवांसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक एक्सटेंडेड वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर सके। दैट विल बी हेल्प टू एनालाइज द each and every program and each and every section in the developer or any team of the program or team जो भी उसके ऊपर काम कर रही है किसी भी स्टेज के ऊपर, उसको अंडरस्टैंड कर सके। So that is the program documentation part, and this is all about the program problem solving using computer. So thank you so much.